Good evening again. So today we are going to start a new chapter, that is algebraic expressions and identities. Yeah, good evening everyone. Okay. So first of all we need to know what is expression or what are expressions, right? So here we can see few um, terms are written: x plus 3, 2y minus 5, 3x square, 4xy plus 7, etc., etc. So these are nothing but the expressions. Okay, so these are expressions, and we have to represent these expressions on number line. So how can we do that? Let us see. Consider we have our first expression as x plus 5. So we have to show this expression on number line. So how we are going to do this? See, this is the origin of our number line. This is positive. It is going towards positive, right? So we don't know the value of x. We don't know exact value of x. X is a variable. So we take this measure as x. It can change, right? And we add 5 to it. So this segment OP, this segment OP is nothing but x plus 5. X is a variable and 5 we have added. That is numerical value. Okay. So this is the representation of x plus 5 on number line. Now we have one more expression, that is 4x plus 5. So how do we represent that? See, now this is x. We know that. Now we have to take this measure 4 times. This one is x, this one is x, this one is x, this one is x. That means 1, 2, 3, 4. There are 4x's. 4x plus 5. So we represent this expression on number line like this. So this segment OD is 4x plus 5. Right? What will be the segment AD? See this from A to D. ये जो सेगमेंट है इसको हम कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 2x plus 5, correct? See, x and this x, 2x plus 5, correct? The position of 4x will be point C, which is here, and the distance of C from origin will be 4 times the distance of x from the origin. The position of D, 4x plus 5, will be 5 units to the right of C. This is okay. So we can try an activity here. Try this. Give 5 examples of expressions containing one variable and 5 examples of expression containing two variable. So you may have seen expressions in one variable and two variable. Okay. So let's not. This is very simple basically. ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है. If we talk about the second example, there is we have to show the number on number line. So we have to show this expression on number line. तो x अगर हमें दिखाना है, सो दिस इज नथिंग बट द x. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रैंडम डिस्टेंस लेंगे एंड विल गिव इट एज x, एंड द वैल्यू ऑफ x इज वेरिएबल, वी डोंट नो दैट. x -4 अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? तो सी x -4 अगर हमें एक्सप्रेस करना है, सो सी दिस इज x. ठीक है, इसमें से अगर हम 4 कम कर देंगे, सो दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी x -4. मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, O से लेके इस सेगमेंट को मैं नाम देता हूँ y. ठीक है, सो ओ वाई विल बी x -4, जबकि ये जो है ये 4 रहेगा. तो राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन represent the expression on number line. Next we have terms, factors and coefficients. Take the expression 4x plus 5. This expression is made up of two terms. 4x is one term and 5 is another. So terms are added to form expressions. So how expressions are formed? Expressions are formed by adding terms. Terms themselves can be formed as the product of factors. तो एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है? टर्म्स से फॉर्म होता है. और टर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं? टर्म्स आर फॉर्म्ड और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. मतलब कोई तो फैक्टर्स रहेंगे उसके, एंड वी इफ वी मल्टीप्लाई देम,
So it makes terms. So the term 4x is product of its factors 4 and x, and the term 5 is made up of just one factor, that is 5, right? So इस तरीके से terms, factors and coefficients work. Now have we seen coefficients? Coefficients हमने अभी तक देखा है क्या? नहीं देखा है. So the expression 7xy minus 5x has two terms, 7xy and minus 5x. The term 7xy is a product of factors 7x and y. The numerical factor of term is called as numerical coefficient or simply coefficient. तो जो numerical value रहेगी, अभी यहाँ पे 7xy में numerical value कौन सी है? 7 है. So 7 is nothing coefficient of that term. Okay, 7 is a coefficient. अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें -5x, तो -5 is coefficient. Identify the coefficients of each terms in the expression given. So इस टर्म का कोएफिशिएंट आप लिखिए चैट बॉक्स में, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? What is the coefficient of x square and y square? Okay, it is 1. Okay. What is coefficient of second term? इसका क्या है? Everyone write it in the chat box. सबने लिखना है, सिर्फ ऐदुर ने ही लिखना है, ऐसे नहीं है. ठीक है, बाकी लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? -10 है या फिर 10 है? कोएफिशिएंट 10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए? कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है क्या? बाकी लोग लिखिए. Priyal and Harsuk, are you there? Okay. -10 बराबर है, -10 ही है कोएफिशिएंट, 10 तो नहीं है. माइनस भी कोएफिशिएंट हो सकता है. या करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पर 20 रहेगा, -20. ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. तो जैसा कि इसमें इसके नाम में ही है, मोनो मीन्स सिंगल या फिर वन. मोनोमियल मोनोमियल जो होता है उसमें सिर्फ एक टर्म रहती है. मोनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म. And the expression that contains two terms is called as binomial. Bi means two, mono means one, bi means two. Binomial कौन सा expression रहता है? जिसमें कि दो terms हो. And an expression containing three terms is called as trinomial, and so on. So in general, an expression containing one or more terms with non-zero coefficients, with variables having non-negative integers as exponent, is called polynomial. A polynomial may contain any number of terms, one or more than one. ठीक है, तो इन जनरल हम इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं. बट पॉलिनोमियल को समझने के लिए वी हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं 10x माइनस 0y. तो क्या है ये बताइए मुझे? इज इट अ बाइनोमियल, इज इट अ मोनोमियल, और इट इज ट्राइनोमियल, और इट इज अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज इट? इट इज अ बाइनोमियल. I'm so sorry. Yeah. So it is a binomial. Is it a binomial? ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू. अगर मैं इस 10x माइनस 0y को 10x लिखता हूं, तो क्या है गलत है? क्या है गलत है? नहीं है, बराबर. तो जो 10x मैंने लिखा है, इज इट अ मोनोमियल और इट इज अ बाइनोमियल? इज इट अ बाइनोमियल और मोनोमियल? इट्स अ मोनोमियल, राइट? सो एक ही एक्सप्रेशन जिसमें कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सो हाउ इट कैन बी मोनोमियल एंड बाइनोमियल एट द सेम टाइम? राइट, इट शुड नॉट बी ना. सो यहाँ पे लिखा है, सी,
वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। मतलब क्या, यहां पे जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाद में कितने भी टर्म्स ऐड कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूं +0z, तो अभी यहाँ पे जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 10x - 0y + 0z, इज इट अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल? व्हाट इज इट? इट्स अ मोनोमियल, इट इज गोइंग टू बी मोनोमियल बिकॉज यहाँ पे जीरो, जीरो कोएफिशिएंट है ना, y का कोएफिशिएंट जीरो है, z का कोएफिशिएंट जीरो है, सो उनका कोई वैल्यू है नहीं। सो देयर इज ओनली वन टर्म व्हिच हैज वैल्यू एंड दैट इज 10x, राइट? सो 10x है मतलब एक ही टर्म है, सो दैट इज monomial. Okay, there's one more line written over here, with variable having non-negative integers as exponent. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट मतलब क्या? अगर मैं यहां पे इसे लिखता हूं 10 रेस टू, सॉरी 10x⁻⁻², तो क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है? या इट्स अ मोनोमियल, बट द थिंग इज यहां पे जो पावर है दैट इज -2। ओके, सो -2 नहीं चलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी 10x² रहता तो इट वुड हैव बीन मोनोमियल। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे मोनोमियल के, तो 4x² है, 3xy है। अब यहाँ पे 3xy मोनोमियल क्यों है स्टूडेंट्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? 3xy कैसे मोनोमियल हुआ? क्योंकि एक ही टर्म है इसमें। ऑल्दो देयर इज अ कोएफिशिएंट, देयर आर टू वेरिएबल्स, बट टर्म एक ही है ना, तो हम टर्म के बेसिस पे इसे जज करते हैं, राइट? सो यहाँ पे एक टर्म है 3xy, दैट मीन्स इट्स अ मोनोमियल। 7z - 7z, दैट इज अगेन अ मोनोमियल। 5xy² दैट इज अगेन अ मोनोमियल। तो बाइनोमियल के एग्जांपल्स क्या है? a+b हुआ, 4l+5m हुआ, या फिर a+4। सो दीज आर विच हैज टू टर्म्स बेसिकली, तो वो हुआ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो a+b+c, अगेन a+b+c इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? पॉलिनोमियल इज व्हाट? पॉलिनोमियल इज a polynomial may contain any number of terms, one or more than one। मतलब ये जो 10x है, इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट टू सिंप्लीफाइज वी कॉल इट मोनोमियल। अगर जो बाइनोमियल है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मींस मेनी, यू नो दैट ना, कि POLI, पॉली मींस मेनी, मेनी टर्म्स, इट मे बी वन और मोर देन वन, राइट? सो दैट इज polynomial. So classify the following polynomial as monomial, binomial and trinomial। तो आपको सिर्फ पहला लेटर लिखना है, M, B और T। सो व्हाट इज इट? पहला टर्म क्या है, पहला क्या है? इट्स अ मोनोमियल, इज इट? इट्स अ बाइनोमियल, या। सेकंड वन, सेकंड एक्सप्रेशन इज इट्स अ ट्राइनोमियल, करेक्ट। लास्ट वन, लास्ट वन जो लास्ट में लिखा है वो इट्स अ मोनोमियल, या, करेक्ट। सो कंस्ट्रक्ट बाइनोमियल विथ x एज वन वेरिएबल। लिखिए, यहाँ पे 3 बाइनोमियल लिखने के लिए बोला है हमें, हम एक ही लिखेंगे, 3 बाइनोमियल्स विथ ओनली x एज ए वेरिएबल। तो आप एक बाइनोमियल लिखिए जिसमें x वेरिएबल हो। क्या आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में? कैन यू राइट बाइनोमियल? बाइनोमियल मतलब क्या रहेगा? उसमें दो टर्म्स रहेंगे एंड विथ x एज ए वेरिएबल, सिर्फ x ही वेरिएबल हो, या सो x+2 कैन बी द बाइनोमियल। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कॉफिंग साउंड। या x+2, राइट? और कुछ लिख सकते हो आप लोग? आइदुर,
x minus 7. Okay. Harsuk, can you write a binomial with x as a variable? Only one variable is there. X plus 34. Very good. Okay. So let's write the second one. Three binomials with x and y as a variable. तो एक ही लिखिए, with x and y as a variable. अब एक बाइनोमियल लिखिए with x and y as a variable. 2x plus 3y. Very good. 5xy plus 45, which is again correct. और एक 4x minus 5y. Very good. Okay. So three monomials with x and y as a variable. लिखिए, monomial लिखिए, x and y as a variable. Okay, 3xy. Okay, great. ठीक है. Okay, सबने 3xy ही लिखा. Okay, no problem. Like and unlike terms. So look at the following expressions. So we have to identify whether the terms are like or unlike terms. तो like और unlike terms हम कैसे जज करेंगे कि लेकिन see 7x is one of the term or one of the expression. So 7x के like term कौन सी रहेगी, जिसका जो वेरिएबल है which is only x. 7 का वेरिएबल क्या है, 7 के साथ में वेरिएबल है attached is x. So like terms will be the terms which will be having x as a variable, right? Which is in the case of 14x, and in 13x also, minus 13x also, x is variable. So 5x square का जो like term रहेगा वो रहेगा 9x square, राइट. 7xy का जो like term है वो रहेगा माइनस 5yx. इट डजेंट मैटर वेदर व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दोज वेरिएबल्स. मतलब यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में xy लिखा है, दूसरे इसमें yx लिखा है. यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, -5yx. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, बट स्टिल वेरिएबल्स आर सेम. यहाँ पे भी xy है, वहां पे भी xy है, राइट. सो दे आर लाइक टर्म्स. नाउ why 7x and 7y are not like terms? तो 7x और 7y क्यों लाइक नहीं है? बिकॉज दे डोंट हैव सेम वेरिएबल. एक का वेरिएबल x है, दूसरे का y है. भले ही उसका कोएफिशिएंट सेम है, 7 ही है, 7 7, लेकिन यहाँ पे x है, वहां पे y. सो दे आर नॉट लाइक. सेकंड एग्जांपल अगर हम लेंगे तो उसमें 7x एंड 7xy आर नॉट लाइक. क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इसमें एक ही वेरिएबल है, दूसरे इसमें दो वेरिएबल्स है. सो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसका जो पावर है. नो, अगर थर्ड एग्जांपल आप देखोगे तो उसमें 7x लिखा है और 5x² लिखा है. सो आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही वेरिएबल है, और मतलब दोनों में भी एक ही वेरिएबल है. बट द थिंग इज कि यहाँ पे x का पावर 1 है, और जो दूसरा है 5x² उसमें x का पावर या फिर x⁻² है. सो अगेन दे आर नॉट लाइक. ओके, एनी डाउट विथ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? नहीं होना चाहिए, ठीक है. राइट टू टर्म्स विच आर लाइक. लिखिए आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए 7xy की लाइक टर्म लिखिए. 7xy का लाइन लाइक एक्सप्रेशन लिखिए. इट विल बी 7xy एंड 4xy, करेक्ट. थर्ड वन का लिखिए 2l का क्या रहेगा लाइक टर्म. 2l का क्या रहेगा लाइक टर्म और लाइक एक्सप्रेशन, वॉट एवर यू से. 2l एंड -l, दैट इज करेक्ट. -l है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन द वेरिएबल इज l, राइट. चलो सेकंड का लिखो. 4mn² का जो यहाँ पे दिया है उसका लाइक टर्म लिखो. एवरीवन, तीन लाइक टर्म्स यहाँ पे दिखने चाहिए मुझे. तीन लाइक टर्म्स यहाँ पे दिखने चाहिए मुझे. कैन आई गेट द फर्स्ट वन? 3mn². वेरी गुड. ओके. 3mn². ओके. 3 मोर लिखो.
4mn square, 5mn square, 2nm square. Okay, that's wrong है. जो तो तुमने लास्ट में लिखा है ना 2nm square, यहाँ पे सिर्फ n स्क्वायर है, mn स्क्वायर नहीं है. ओके, तो n का ही स्क्वायर होना चाहिए, m का स्क्वायर नहीं होना चाहिए. दिस स्क्वायर इज ओनली फॉर n, राइट. वो 4 के लिए m के लिए एप्लीकेबल नहीं है. या ओके. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नाउ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली ऐड इट. तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा वाला एक्सप्रेशन है मोस्टली हमें उसे ऊपर लिखना है, एंड जो छोटा वाला इन द सेंस की जिसमें कम टर्म्स है वो नीचे लिखना है. एंड मेक श्योर दैट यू राइट लाइक टर्म्स, एक के नीचे दूसरा लिखना है, राइट. अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट है सिर्फ, तो दोनों कोएफिशिएंट लिख दिए. यहाँ पे 4x था तो उसमें से लाइक टर्म देख लिया, और 9x मैंने लिख लिया. यहाँ पे 7x स्क्वायर के लिए कोई लाइक टर्म है नहीं, तो उसके नीचे हम कुछ लिखेंगे नहीं. हो सकता है कि इसका जो ऑर्डर है वो गलत हो, मतलब आपको ये ऐसा भी एक्सप्रेशन मिल सकता है कि 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x. सो इसको आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, वो तो हम सीख ही लेंगे, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए क्या हमें ध्यान में रखना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी राइट लाइक टर्म्स वन बिलो द अनदर, ठीक है. तो सिंपली अभी ऐड करना है. नाउ 5 को अगर -10 में ऐड करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी -5. -4x को 9x में, पॉजिटिव 9x में ऐड करेंगे, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 5x. एंड 7x स्क्वायर विल बी एज इट इज, क्योंकि उसके साथ में सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए कोई टर्म है ही नहीं. सो इट विल बी एज इट इज. सो हमारा जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5. सो एग्जाम्पल 1, अगेन एक सॉल्व एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे. 7x प्लस 5yz प्लस 3zx, ये रहा एक एक्सप्रेशन, ये रहा दूसरा एक्सप्रेशन, और ये रहा तीसरा एक्सप्रेशन, ठीक है. इन तीनों को हमें ऐड करना है. तो तीनों को ऐड करने के लिए तीनों में एक एक की टर्म है. तो सबसे पहले ऊपर वाला लिख लो, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx. सेकेंड एक्सप्रेशन में से 4yz मैंने 5yz के नीचे लिखा, 9zx मैंने 3zx के नीचे लिखा, और -4y के लिए कोई टर्म था नहीं तो मैंने उसे सेपरेटली लिख दिया. अगेन -2, सी यहाँ पे -2xy लास्ट में लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया -2xy. यहाँ पे 3x पहले लिखा है, लेकिन मैंने इसे बीच में लिख दिया zx के नीचे, ठीक है. यहाँ पे xz लिखा है, मैंने इसे zx लिखा है, दैट डजंट मैटर, ठीक है. उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो ठीक है, सिर्फ मेक श्योर कि आप उसका पावर नहीं चेंज करो. लाइक zx स्क्वायर है तो आपको x स्क्वायर z लिखना पड़ेगा, xz स्क्वायर नहीं लिख सकते. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट. सो लाइक टर्म्स शुड बी वन बिलो द अनदर, एंड वी कैन देन ऐड इट. 4 के लिए कुछ है नहीं, तो 4y एज इट इज आ जाएगा. सिमिलरली विद 5x, सो 3zx माइनस 3zx प्लस 9zx माइनस 3zx. तो 3 और 3 होता है 6 अगर 9 में, -6 अगर 9 में ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 3zx. 5yz प्लस 4yz इज 9yz, एंड 7xy माइनस 2xy इज 5xy. सो इस तरीके से हमें एडिशन आएगी. ओके, so let's solve one or two examples from this practice set and let's move further with the next topic, right. तो ओके, सब्ट्रैक्शन हमने नहीं सीखा ना, सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट ठीक है. सो सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट जो सबसे बड़ा वाला एक्सप्रेशन है वो ऊपर लिखना है. नॉट ओनली बड़ा वाला या छोटा वाला, यहाँ पे सिर्फ हमें क्लियरली दिया रहेगा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट. एडिशन में ऐसा नहीं होता. एडिशन में आप कोई भी ऊपर लिख लो, कोई भी नीचे लिख लो, डजंट मैटर. मैटर करता है क्या, नहीं करता, बिकॉज 5 में 3 ऐड करो या फिर 3 में 5 ऐड करो, आंसर 8 ही आना है, राइट. बट इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, 5 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर -2 आएगा, और अगर 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर +2 आएगा, बराबर. मतलब यहाँ पे साइन का, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर्स. सब्ट्रैक्शन में हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें नीचे लिखना पड़ेगा, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर लिखना पड़ेगा. दैट्स अ रूल, राइट. सो हमें ये जो एक्सप्रेशन है सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस वन, सो वी विल राइट दिस वन फर्स्ट एंड देन दिस वन. लिख लिया.
लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिख लिए. सो द नेक्स्ट एडिशनल स्टेप हियर इज, हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं. सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एन एडिशन. नाउ यू विल से हाउ सर. ठीक है, तो देखो क्या कैसे 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 करना है. यहाँ पे 5x² लिखा है, तो इसका साइन पॉजिटिव था, मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, या फिर उसका साइन चेंज कर दिया नेगेटिव को. 4y² था, -4y², मैंने उसका साइन पॉजिटिव कर दिया. +6y था, मैंने उसका साइन नेगेटिव कर दिया. और -3 था, यहाँ पे मैंने इसे +3 कर दिया. ठीक है, तो आप अगर ऐड करोगे तो ये +3 एज इट रहेगा. नाउ -3 -6y रहेगा, ये +6y नहीं है, इसको भी हमें ऐड ही करना है. सो माइनस माइनस ऐड ही होता है. सो 9y आएगा, -9y, 5x एज इट इज आएगा. 8y² +4y², यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, साइन चेंज किया ना हमने. सो 12y², 4y -4xy एज इट इज नीचे आएगा. और 7x² -5x², दैट इज 2x². सो आप सब लोग मुझे एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में whether you understood the subtraction or not. It is bit complicated, I know that. अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आई कैन रिपीट, बट अगर समझ में आया है तो प्लीज बता दो चैट बॉक्स में. ओके ओके, आई कैन सी, नो डाउट नो डाउट. ठीक है, हरसुख डू यू हैंड आउट? बाकी सबका कंफर्मेशन आ गया है? ओके, ठीक है. So note that subtraction of number is same as addition of its additive inverse. So the subtracting -3 is same as adding +3. तो जो कि हमने अभी भी सीखा ना कि subtraction is nothing but addition, but just we what we do is हम उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं, मतलब कि उसका जो साइन है वो चेंज करते हैं. नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, और ऐड ही करना है. सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन, ओनली द थिंग इज साइन चेंज होता है. सो आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट्स, वेरी सिंपल, यू कैन डू इट. Classify the following polynomials as binomial, monomial and trinomial. Very simple again. Add the following. तो ठीक है, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 3. सो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 7 एग्जाम्पल्स है. 7 में से कौन सा एग्जाम्पल लेना है? 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, कौन सा लेना है? आप लोग बताइए. विल टेक दैट एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, वेदर इट शुड बी सब्ट्रैक्शन और इट शुड बी एडिशन, वट एवर इट इज. First one, students. करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट वन ले लेते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है? एडिशन करना है. ए बी माइनस बी सी, कॉमा बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी. ओके, लेट्स डू इट. सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन. ए बी मैंने लिख दिया यहाँ पे, माइनस मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो बी सी माइनस सी ए है. बी सी यहाँ पे लिख देंगे, और जो माइनस सी ए है वो यहाँ पे लिखना है, या फिर ए सी, वॉट एवर यू कैन कॉल इट. थर्ड वाला एक्सप्रेशन है, उसमें सी ए है और ए बी है. तो ए बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे रहेगा? माइनस ए बी रहेगा, बराबर. एंड यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, एंड इट शुड बी प्लस सी ए. What is going to be the result, students? Is it going to be 0? Yeah, because ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ में. ए बी विल बी गेट, ए बी विल get cancelled with this AB, minus BC will get cancelled with this positive BC, and minus CA will be cancelled with this positive CA, right? So पहले का जो आंसर है that is going to be 0. Yes or no? Answer is 0.
Okay, so that's about it. Exercise 9.1. चलो, now multiplication of algebraic expressions. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. सो 4 into 9, you know how to do it. You may have learned it to in the first or second class, right? So you all know this. Now similarly हमें जब expressions की multiplication करनी होती है, so there are certain rules that we need to keep in mind. ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे. Let's try to do a example directly. तो मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विथ अ मोनोमियल, मतलब एक मोनोमियल को हम दूसरे मोनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर 4 इज ए मोनोमियल एंड x इज ए मोनोमियल, बोथ आर मोनोमियल्स, करेक्ट. सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस 4 विथ दिस x, सो इट इज गोइंग टू बी 4x. मतलब जब हम मोनोमियल को मोनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट रिजल्ट एज मोनोमियल. ओके, now if you see here this example, x plus 3y, so it is going to be 3xy. I hope you know this, correct? 5x into 3y, so it is going to be 15xy. आप में से ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है, like sir I don't know how to multiply monomials, at least monomials. Let's forget about binomials. Binomials के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मोनोमियल्स में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट. नाउ हमने दो मोनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी मल्टीप्लाई किया था एक दूसरे के साथ में. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3 मोनोमियल्स और मोर मोनोमियल्स. तो कितने भी मोनोमियल्स रहने दो, लाइक सी 1 2 3, 3 मोनोमियल्स आर हियर. अगेन वी आर गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन एज अ सिंगल मोनोमियल और ए सिंगल एक्सप्रेशन, करेक्ट. सो अगर ज्यादा भी मोनोमियल्स है, that doesn't matter, हमें एक ही आंसर मिलने वाला है. It is clear that we first multiply the first 2 monomials and then multiply the resulting monomial by the third monomial. This method can be extended to the product of any number of monomials, correct. So find this, find that. So ये आप try कर सकते हो. If you have any doubt, you can let me know. So monomial में किसी को डाउट नहीं है, आपने किसी चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, so that I take it as no, आपको कोई डाउट नहीं है. Okay, so the exercise 9.2 में you people will just solve it and let me know the answers. Second का आंसर बताओ मुझे. चलो, 4p multiplied with 7p, what is the answer? आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ. Please tell me the answer. Is it going to be negative 28p square? (28p) नहीं रहेगा, it is going to be p square. Okay, minus 28p square. All right, फिफ्थ का आंसर बताओ. It's going to be 0, right? The second monomial is 0, so it's going to be 0. Oh, it's not going to be O, it's going to be 0 actually. Anyways, I was just kidding. Yeah, so it is going to be 0. Okay. Find the area of rectangle with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा सा अलग चेंज किया है, but what we have to do, you know that, right? तो इसका निकालो, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, nothing else. Multiply it and tell me the answer. 3mn multiplied with 4np. Okay, is it going to be 12mn square p? Okay, 12mn square p. बाकी लोग, आपको भी आ रहा है? Can you calculate it? At least can you understand it? Yeah, 12mn square p. Yeah, that's going to be the answer. Okay. Now we have to complete this table. You can complete this as your home activity. Okay, आपको homework में यही करना है. 2x को अगर -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी -10xy.
right? Yeah, obtain the value of rectangular boxes with the following lengths, breadths and heights respectively. Similarly, तीन यहाँ पे मोनोमियल है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है. Now, multiplying a monomial by a polynomial. So please let me know whether, okay, so do you understand this? Monomial को monomial से कैसे multiply किया जाता है? How many monomials can be multiplied with how many monomials? How the result comes? Any doubts with it? Yes, no, no. Okay. So yeah, that's done about monomials. Now हम क्या करेंगे अभी? Monomial को polynomial से multiply करेंगे. So multiply a monomial by a binomial. Firstly, monomial को हम binomial से multiply करेंगे. So see, यहाँ पे if you see, here is one monomial and here is a binomial. So 3x is a monomial, 5y plus 2 is binomial. Binomial क्यों कहेंगे हम इसे? Because it has two terms. So इसको अगर हम multiply करेंगे, so how do we do this? यहाँ पे 3x को हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5y से, पहले 5y से मल्टीप्लाई करना है. सो 3x मल्टीप्लाइड विथ 5y इज 15xy which is written here, correct? Now 3x should be multiplied with 2 and it should be written as the second term. So 3x into 2 is 6x, right? So 15xy plus 6x, that is our result. So if you notice here, if we multiply a monomial with a binomial, then the result is also binomial. Okay, can you do this? आप ये सॉल्व कर सकते हो? Tell me the answer. Tell me the answer. What is going to be the answer? 2x is a monomial which is multiplied with 3x plus 5xy. Okay, 6x square plus 10x square y. Perfect. Correct. Okay, so I know this is going really fast, but this is very simple also, isn't it? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मुझे पता है, बट ये बहुत सिंपल है. सो I don't think it is like, worth it to spend time on this, isn't it? So let's go with the flow. Multiply a monomial by a trinomial. So अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? We have to multiply a monomial with a trinomial. So again similarly, ये 3p जो लिखा है यहाँ पे, 3p को हमें पहले 4p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में 5p से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 7 एंड वी हैव टू राइट इट एज सेपरेट टर्म्स. सो पहली टर्म रहेगी 12p क्यूब प्लस सेकंड टर्म विल बी 15p स्क्वायर and the third term is going to be 21p. Correct? So this is how we multiply a monomial with a trinomial. Now similarly you can multiply a monomial with any polynomial. तो उस polynomial में जितने भी terms रहेंगे, the result is going to be that much terms only. मतलब अगर monomial को आप let us suppose एक polynomial से multiply करते हो जिसमें कि 5 terms है, so your result is going to be of 5 terms, right? So this is how you multiply it. Okay, now multiply a polynomial by a polynomial. So I feel let's keep this for the next class, right? So ज़्यादा rush नहीं करते हैं. So your homework will be your practice set 9.1, 9.2 and 9.3. तो ये तीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो. आई होप कि आपके स्कूल में ये हो गया होगा. So if you have any doubt, please come up with your doubts in the next class. Okay, and multiplication of polynomial with polynomial we'll see in the next class. Okay, so chalo, that's it for today students, and I declare this class has ended and you can leave the class. Take care, bye bye, see you in the next class. Yeah, bye.